Hello children, welcome to e-learning. Today we will read a beautiful story and the name of the story is Unity is Strength. So let's begin the chapter. 2.4 Story Time. Unity is Strength. An old man lived with his 4 sons in a village. The old man was worried. His sons were always quarreling with each other. They would never agree on any point. The old man had tried telling them many times to avoid fighting, but his sons would not listen to him. They would fight for everything. So what happens, children? An old man lived with his 4 sons in a village. So once upon a time there was an old man who lived with his 4 sons in a village. यानी एक बार क्या हुआ था, एक समय की बात है कि एक बूढ़े आदमी जो है उनके 4 बेटों के साथ एक गांव में रहते थे. The old man was worried. तो जो वो बूढ़े आदमी थे वो क्या थे? worried थे. worried यानी बहुत चिंता में थे. His sons were always quarreling with each other. So तुम देख सकते हो यहाँ पे पिक्चर में that the sons kept fighting with each other, quarreling with each other. यानी ये बच्चे जो थे उनके 4 बेटे हमेशा एक दूसरे से झगड़ा करते रहते थे. ठीक है. They would never agree on any point. वो कभी भी कोई भी पॉइंट को लेकर सहमत नहीं होते थे. यानी कोई ऐसे बोलता था कि नहीं ये सही है, नहीं वो सही है, तो कभी भी वो कोई भी एक बात पे एग्री नहीं होते थे. The old man had tried telling them many times to avoid fighting. तो जो उनके फादर थे उन्होंने उन्हें बहुत बार समझाया that please stop fighting, don't fight, यानी फाइट मत करो. But his sons would not listen to him. They would fight for almost everything. So the father tried a lot to explain them कि fighting मत करो, लेकिन उसके sons जो थे यानी उनके जो बेटे थे वो उन्होंने कभी भी उनकी बात नहीं मानी और वो हर चीज़ के लिए फाइट करते थे. So let's see what happens one day. One day he called his 4 sons. He gave them a small bundle of sticks and asked them to break the bundle into 2. It's so easy, said the eldest son. He took the bundle and tried to break it. He was surprised that the sticks in the bundle remained unbroken. He used more force. He tried again and again, but the bundle of sticks did not break. He gave up. So what happens one day? The father calls the 4 sons. यानी जो वो उनके डैड थे उन्होंने क्या किया, उनके चारों बेटों को बुलाया. He gave them a small bundle of sticks. और उन्होंने क्या किया, एक छोटा सा bundle of sticks उनको दिया. ठीक है. And asked them to break the bundle into 2. और उन्होंने क्या बोला उनको कि तुमको इस बंडल को क्या करना है, 2 पार्ट्स में उसको तोड़ना है, ब्रेक करना है. It's so easy, said the eldest son. यानी जो एल्डेस्ट था, एल्डेस्ट यानी क्या, जो सबसे बड़ा बेटा था, वो क्या बोलता है, ये तो बहुत ईजी है. He took the bundle and tried to break it. तो उन्होंने क्या किया, वो एल्डेस्ट सन जो था उसने बंडल लिया और उसको ब्रेक करने की कोशिश की, ट्राई किया. He was surprised that the sticks in the bundle remained unbroken. तो एल्डेस्ट सन जो था वो एकदम सरप्राइज हो गया कि अरे ये स्टिक्स तो ब्रेक ही नहीं हो रहे हैं. He used more force. तो उन्होंने क्या किया, बहुत ताकत लगाई एल्डेस्ट सन ने, लेकिन फिर भी तुमको क्या लगता है क्या हुआ रहेगा, वो स्टिक्स ब्रेक हुए रहेंगे? नो, बट द बंडल ऑफ स्टिक्स डिड नॉट ब्रेक. ही गेव अप. तो एट लास्ट क्या हो गया, वो एल्डेस्ट सन ने गिव अप कर दिया. उसने बोला कि नहीं, मुझसे नहीं हो रहा, ये ब्रेक नहीं कर सकते. सो लेट्स सी व्हाट अदर्स डिड. देन हिज ब्रदर ट्राइड टू ब्रेक द बंडल ऑफ स्टिक्स. तो अभी जो दूसरा भाई था उसने ट्राई किया बंडल ऑफ स्टिक्स को ब्रेक करने का.
They tried hard, but they too could not succeed. तो उन्होंने भी ट्राई किया, बाकी ब्रदर्स ने भी ट्राई किया, लेकिन वो बंडल ऑफ स्टिक्स वो तोड़ नहीं पाए. Their father smiled and asked them to untie the bundle. So the father smiled. तो उनके जो डैडी थे वो अच्छे से स्माइल करते हैं और उन्हें बोलते हैं कि चलो इस बंडल को अभी आप अनटाई कर दो. अनटाई यानी क्या, उसको खोल दो आप. Now the sticks were separated. अब क्या हो गई, स्टिक्स जो हो गई वो सेपरेट हो गई. He gave each brother a single stick and asked them to break it. So what the father does, father gives each brother a single stick and tell them to break the stick. Each of the sons took a stick in hand. In no time the sticks were bent and broken. So क्या होता है, जब उनके डैड उनको एक एक स्टिक देते हैं तोड़ने के लिए, तो तुरंत जो होता है वो इजी होता है ब्रेक करने के लिए, और सारे ब्रदर्स तुरंत उसको बेंड करके ब्रेक कर देते हैं. A single stick is easily broken. If 4 sticks come together, it is impossible to break them. If you are united, help each other, and live in friendship, you will be stronger than any enemy. But if you are divided among yourselves and keep fighting, you will be as weak as the single stick in that bundle. Remember, united we stand, divided we fall, said the old man, giving his sons a meaningful look. So what happens, the father tells his sons that a single stick is easily broken. यानी जो single stick होती है वो easily break हो जाती है. But if 4 sticks come together, it is impossible to break them. लेकिन जब 4 sticks साथ में आती है तो वो impossible होता है उसको break करना. If you are united, help each other and live in friendship, you will be stronger than any enemy. तो उनके फादर क्या बोलते हैं, अगर आप यूनाइटेड रहते हो, एक दूसरे को हेल्प करते हो, फ्रेंडशिप बना के रखते हो, तो तुम्हें कोई भी तोड़ नहीं सकता. यानी तुम बहुत स्ट्रॉन्गर बन जाओगे तुम्हारे एनिमी से. एनिमी यानी दुश्मन से. बट इफ़ यू आर डिवाइडेड अमंग योरसेल्व्स एंड कीप फाइटिंग, यू विल बी एज वीक एज द सिंगल स्टिक इन दैट बंडल. तो फादर क्या बोलते हैं, लेकिन अगर आप डिवाइडेड हो, यू कीप ऑन क्वारलिंग, कीप ऑन फाइटिंग, देन what will happen, you will be weak as the single stick in that bundle. यानी अगर आप झगड़ा करते रहोगे तो क्या होगा, आप सब वीक हो जाओगे. और किसकी तरह वीक हो जाओगे, जो सिंगल स्टिक थी बंडल में उसकी तरह वीक हो जाओगे. सो द फादर टेल्स दैट रिमेंबर, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल. यानी जब हम लोग एक साथ होते हैं तो हम बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन जब हम डिवाइड हो जाते हैं यानी जब अलग हो जाते हैं, वी बिकम वीक. सो दिस टाइम द ब्रदर्स लर्नड अ लेसन. सो ये एक्टिविटी से उन्होंने बच्चों ने क्या सीखा, एक लेसन सीखा. उनके 4 बेटों ने एक सीख सीखी. दे स्टॉप्ड फाइटिंग विथ ईच अदर. They started to work together as a team, and that really helped them. So जो ब्रदर्स होते हैं वो एक लेसन सीखते हैं और वो फाइटिंग करना स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि उनके डैड उन्हें क्या बोलना चाहते थे, और वो सब लोग मिलकर काम करते हैं और एज अ टीम वर्क करते हैं, और इससे उनको बहुत फ़ायदा होता है. यू कैन सी इन द पिक्चर दैट उनका ये फार्म है और वो क्या कर रहे हैं, चारों लोग मिल के दे आर हेल्पिंग ईच अदर एंड डूइंग ऑल द वर्क. ओके, एंड यू कैन सी द फादर इज स्माइलिंग. पहले वो बहुत वरीड थे, लेकिन अभी क्या है, वो नाउ ही इज़ हैप्पी. सो इवन यू हैव टू बी ऑलवेज स्टे यूनाइटेड and no quarreling and no fighting. Okay, now I will give you dictation words and we will also solve the question and answers. Okay, but for that you need to check our next video. So thank you for
watching this video and don't forget to share it with your friends.